Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. My dear students, as you know that today we are going to start, or we have already started, unit number 2 from your geography 7 books, और मैंने आपको डिटेल से इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था. So आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले let's quickly have a look at not the student learning outcome, क्योंकि मैं आपसे पहले एक क्वेश्चन पूछूंगी. So quickly tell me that where do you think most of the earth water is found? जी, कहाँ पे found होता है? What is this area called? जी हाँ, the most of the earth's water is found in the oceans. Very good. So now let's quickly move forward towards today's lesson. So आज का lesson किस बारे में है? It is about the main water sources which are found on the earth. कौन कौन से sources हैं जो ज़मीन पर पाए जाते हैं, वो हम आज उनके बारे में बात करेंगे, और हम ये भी लिंक करेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन से इनमें से sources जो हैं वो मौजूद हैं. So moving on, my dear students, this is the book from your page. So quickly pause the video and open page number 24 in your books. I hope everybody has opened unit number 2 in the book. So now let's quickly move forward. So my dear students, today's student learning outcome is knowledge 2.1. Identify the major sources of water on earth and in Pakistan. So this is page number 25 that you will open. So my dear students, water on earth. So अगर हम पानी की बात करें तो ज़मीन का 71% हिस्सा जो है that comprises water. ठीक है. So 29% जो है that is only land, और 71% जो ज़मीन के ऊपर मौजूद है वो पानी है. So 71% पानी होने के बाद क्या हम ये तमाम पानी इस्तेमाल कर सकते हैं? No. So out of this 71%, 97% जो पानी है that is salty water. So we cannot use all of the water. So that means हमारे पास सिर्फ 3% जो है वो फ्रेश वाटर बचता है, जिसमें से ज़्यादातर पानी जो है वो कहाँ पर मौजूद है? That can be found in river, lakes, ice caps and groundwater. So water is present not only on the earth's surface but also in the atmosphere as water vapors and within living organisms. So ये तमाम पानी की तकसीम है जो कि ज़मीन पर मौजूद है. अब अगर डिटेल से हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे 97% जो हिस्सा है वो पानी का है. ठीक है. और वो कौन सा पानी है? That is ocean water. ठीक है. 71% जो है वो टोटल वाटर है, और उसमें से 97% सिर्फ सॉल्टी है, 3% फ्रेश वाटर है, और उसमें से भी 68% जो है that is glacier and ice caps, यानी कि वो फ्रोजन वाटर है, that cannot be used. 30% जो है उसमें से जो है वो ग्राउंड वाटर है, उसमें से कुछ जो है वो सरफेस वाटर है, कुछ जो है वो वाटर इन लेक्स है, एंड सम इज इन द सॉइल एंड वाटर वेपर्स and water in rivers and water in living organisms. So ये तकसीम है पानी की. बहुत ही थोड़ा पानी फ्रेश वाटर जो है वो हमारे इस्तेमाल के लिए बच जाता है. मैक्सिमम वाटर जो है that is present in the seas and oceans which is salty and cannot be used. Okay, so my dear students, ocean and seas की हम सबसे पहले फिर बात कर लेते हैं. The earth's largest bodies of water are oceans including the Atlantic, Pacific, Indian, Southern and Arctic oceans. They are separated by continents and connected with water flowing between them. Each ocean has unique temperature and currents, and they are all salty. Smaller bodies of water called seas are found near land and also salty. Pakistan is situated near the Arabian Sea, which is a northern extension of the Indian Ocean and borders the country southern coastline. The Arabian Sea plays a vital role in Pakistan's maritime activities, trade and coastline. So my dear students, अगर हम दुनिया की बात करें तो इसमें 71% जो है what is that? That is water. बाकी जो है वो land है. तो अगर हम बात करें तो 97% जो है that is what? That is salty water. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम oceans जो हैं वो मौजूद हैं, और इनको किस चीज़ से बीच में इनकी डिविजन कैसे हो जाती है? They are divided by the कॉन्टिनेंट्स. ये लैंड एरिया है येलो जो आपको नजर आ रहा है. पाकिस्तान की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये भी एक सी से टच करता है, जो इसका सदर्न बॉर्डर है दैट टचेस द अरेबियन सी, राइट. और ये अरेबियन सी जो है दैट इज कनेक्टेड टू द इंडियन ओशन. सो ये तकसीम है दुनिया की, जिसमें आपको यहाँ पे बेशतर जो है मुख्तलिफ सीज एंड ओशंस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं. सो पाकिस्तान में जो मेजर वाटर बॉडी है
ऑन द सदर्न साइड दैट इज द अरेबियन सी। और अगर फ्रेश वाटर की बात करें तो द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान इज इंडस रिवर। इसको हम आगे भी इसी लेसन में डिस्कस करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने ओशन एंड सीज की तो बात कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मैक्सिमम जो फ्रेश वाटर हमारे पास फिर बचता है उसमें से मैक्सिमम जो हिस्सा है वो फ्रोजन वाटर का है, यानी कि ग्लेशियर्स और आइस केप्स का है। So these large bodies of ice found in polar regions and high mountains, glaciers store about 68.7% of the world's fresh water. In Pakistan's northern regions like Gilgit-Baltistan, glaciers are a significant source of water, especially during the summer months when glaciers contribute to the river flow. So my dear students, ये हम दुनिया का मैप दोबारा देखेंगे और यहाँ आपको जितना भी रेड एंड ब्लू एरिया नजर आ रहा है, these are the frozen areas, और ये ग्लेशियर्स हैं, आइस कैप्स हैं, ये आइस शीट्स हैं। आइस शीट्स जो है ये मेनली हमें पोल्स के ऊपर नजर आती हैं, ठीक है, दोनों पोल्स पे, नॉर्थ और साउथ पे ये हमें नजर आ रही हैं। ओके, सो ये तो दोनों फ्रोजन होते हैं, हमें पता है। इसके अलावा यहाँ हमें फर्दर रेड कलर में ग्लेशियर्स भी नजर आ रहे हैं। तो जितने भी एरियाज रेड है, दीज आर द बेसिकली ग्लेशियर्स जो कि माउंटेन्स के ऊपर या उनके आसपास जो है वो पाए जाते हैं। अब पाकिस्तान को हम जल्दी से लोकेट करते हैं, विच इज इन साउथ एशिया। यहाँ पे ये एरिया जो हिमालयाज का है, दैट इज ऑल ग्लेशियर, फ्रोजन है, माउंटेन्स हैं, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। पाकिस्तान को भी गिलगित बल्तिस्तान के मकाम पर कुछ ग्लेशियर्स जो हैं वो टच करते हैं। सो दिस एरिया comprises the glaciers of the Pakistan, which is in the north of Pakistan. और ये गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा और शिगर का एरिया जो है, that is all फ्रोजन, और यहाँ पे काफी सारा ग्लेशिएटेड जो एरिया है ये पाकिस्तान का ग्लेशिएटेड एरिया है। और ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है व्हेन द आइस मेल्ट्स इन द समर, तो ये हमारे रिवर्स को भी फ्लो प्रोवाइड करता है और पानी जो है वो प्रोवाइड करता है। Okay, my dear students, moving on towards the next reservoir of water or the source of water, which is the groundwater. सिर्फ सरफेस पे पानी मौजूद नहीं है बल्कि जमीन के नीचे भी पानी मौजूद है। तो बहुत सा पानी जो है वो जमीन के नीचे भी सीप इन कर जाता है और यहाँ जो है एक पूरी लेयर है, देयर इज अ बेड ऑफ रॉक, और ये रॉक जो है ये पोरस होता है, दैट मीन्स इनके दरमियान में खला मौजूद होती है और पानी यहाँ जाकर स्टोर हो जाता है और ये पानी जो है ये फ्रेश होता है एंड दैट कैन बी यूज्ड। So groundwater is the water present beneath the earth's surface and aquifers, और इनको हम aquifer कहते हैं। Basically this is known as an aquifer, porous rocks that are filled with water or they have stored the water. So Pakistan relies heavily on groundwater for irrigation and drinking. Various aquifers across the country serves as important sources of fresh water. So दुनिया में 30% जो है वो ग्राउंड वाटर मौजूद है और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हेविली रिलाई किया जाता है यहाँ ग्राउंड वाटर के ऊपर। ना सिर्फ हम इंडस वाटर के ऊपर रिलाई करते हैं बल्कि हम ग्राउंड वाटर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। अक्सर आपने देहातों में या घरों के अंदर हैंड पंप्स लगे हुए देखे होंगे, बेसिकली दे यूज दैट, और इवन घरों के अंदर मोटर लगी हुई होती है जो कि पंप करती है ग्राउंड वाटर को सरफेस तक लेकर आती है और वो फिर आपके टैंक्स में जाता है। सो कहाँ से आता है वो पानी? ये इन एक्वाफायर्स में स्टोर होता है और यहाँ से ये पानी जो है वो इस्तेमाल होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सोर्स की तरफ चलते हैं, दैट इज द सोर्स फ्रेश वाटर बॉडीज, और दे इंक्लूड द रिवर, लेक्स एंड डिफरेंट reservoirs. They hold about 0.3% of the world's fresh water. The Indus River is the lifeline of Pakistan, originating in the Tibet and flowing through Pakistan before emptying into the Arabian Sea. The system includes several major tributaries such as Jhelum, Chenab River, Satluj. Pakistan has various other rivers and lakes such as the Kabul River, Hub Dam and Manchar Lake, which contribute to the freshwater resources of the country. So my dear students, अब हम जैसे जैसे मुख्तलिफ resources की बात कर रहे हैं, sources of water की बात कर रहे हैं, तो एक और freshwater source जो है which is only 0.3%, that is रिवर्स एंड लेक्स। सो पाकिस्तान में भी एक बहुत ही मेजर रिवर फ्लो कर रहा है, दैट इज द इंडस रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द तिब्बत। सो यहाँ मैं आपको मैप दिखाऊंगी पाकिस्तान का। सो ये तिब्बत की वैली से जो है, तिब्बत के पहाड़ों से होता हुआ ओरिजिनेट होता है इंडस रिवर और इट इज फ्लोइंग थ्रू द पाकिस्तान। नॉर्थ से होता हुआ ये इस तरीके से बहता हुआ पाकिस्तान में जा रहा है और इसकी वेरियस ट्रिब्यूटरीज भी हैं जिनमें से चनाब, जेहलम, सतलुज वगैरह जो हैं वो और ये यहाँ जाके सारी कन्फ्लुएंस हो जाता है, इकट्ठी हो जाती हैं और उसके बाद दे एम्प्टी हेयर इनटू द अरेबियन सी। और इसके अलावा और भी रिवर्स हैं जिनमें हब रिवर है और काबुल रिवर हैं, ये मौजूद हैं। मंछार लेक मौजूद है जो कि इन एरियाज में
पाई जाती हैं और ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज को जो है वो सैराब करती हैं. दैट इज़ वाई पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर एरिया. सो ये मैप जो है ये आपकी बुक्स में अटैच है. इसमें आपको रेड कलर में डैम्स, ब्लैक में लेक्स और जो ब्लू जितने भी एरियाज है दे आर द रिवर्स, और जितने भी पर्पल कलर के आपको नजर आ रहे हैं दे आर द बैराजेस, जो कि मुख्तलिफ जो है वो रिवर्स के ऊपर बनाए गए हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट इज द एटमॉस्फेरिक वाटर. सो ना सिर्फ सरफेस पे पानी मौजूद है बल्कि आपकी जो आबो हवा है इसमें भी पानी मौजूद है. सो बहुत छोटे होते से हम एवापोरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि जब भी हीट जो है वो पड़ती है ज़मीन पर तो क्या होता है, पानी जो है वो एवापोरेट करता है और वो हमारी हवा का हिस्सा बन जाता है. सो पानी जो है हमारी आबो हवा में भी मौजूद है. सो वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द वाटर साइकिल, eventually leading to the precipitation. In Pakistan, the monsoon season usually occurs from July to September. Pakistan receives substantial rainfall, especially in the southern region. This rainfall is crucial for agriculture and replenishing the surface water bodies. So, जो हवा का पानी है, आबो हवा में जो एटमॉस्फेरिक वाटर है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी आगे नेक्स्ट लेसन में जब हम पढ़ेंगे तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन पढ़ेंगे और फिर हम उनको आगे वाटर साइकिल से भी कनेक्ट करेंगे. सो ये इन दोनों चीज़ों के लिए प्रेसिपिटेशन यानी कि बर्फ़ बनाने के लिए यानी कि स्नोफॉल या जिस भी फॉर्म में बारिश बरसती है या बर्फ़ बरसती है, ये एटमॉस्फेरिक वाटर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये उसको वाटर साइकिल से कनेक्ट करता है. पाकिस्तान में भी जुलाई से सितंबर में मानसून की बारिशें होती हैं और ये हमारे रिवर्स को जो है वो सैराब करती हैं. उनको दे कीप देम फ्लोइंग थ्रू पाकिस्तान, और जिससे ये हमारा जो है वो एरिया जो है वो एग्रीकल्चरली फ्लरिश करता है. Okay, my dear students, so now we have discussed about various sources of water, not only on the earth, but also we have related it to the Pakistan. So for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from Bio Teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. Now let's quickly move forward towards the homework. For your homework, you will first of all complete skill 1.1, which is given in your books, in which you will evaluate the reason of low groundwater in Pakistan. So Pakistan में low groundwater किस लिए है? क्योंकि maximum पाकिस्तान में groundwater जो है वो use होता है not only for agriculture or for drinking and various purpose. So further, activity number 1, you will do it, which is water source hunt on earth and in Pakistan, and you will complete exercise A, MCQ number 1 and 2 given in your books. So my dear students, this is your homework, and let's quickly summarize our today's lesson. Today we have discussed that the earth is made up of 71% of water and 29% of land, and out of that 97% is the salty water जो कि oceans और seas में मौजूद है. और फिर further आगे हमने categorize किया fresh water को जो कि glaciers, ice caps, इसके अलावा रिवर्स, ग्राउंड वाटर और एटमॉस्फेयर में मौजूद है. आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेसन. कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.